Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. So, current affairs and static GK is one subject that a lot of us are scared of because रोज कुछ करना पड़ता है. There is so much to do. It's really vast. बाकी भी सब्जेक्ट्स से थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं बट दे आर कॉन्सेप्चुअल इन नेचर कि अगर आपका इंग्लिश वीक है, रीडिंग स्पीड वीक है, यू नॉट श्योर अबाउट मैथ्स, यू लेट्स से वीक एट इट, you can still do it properly if you understand those formula, if you understand the logics behind it. But current affairs is mostly, you would say, it's about learning. And there is a lot to learn. So what to cover, what not to cover, how much to cover, that's a big problem that is in front of all of us. Particularly in the last 6 months of CLAT, we face the problem of backlogs as well, that we have not done the current affairs of previous months properly. In this session, I will tell you the most practical strategy along with sources on how can you prepare current affairs very effectively and score more than 25 in current affairs in the exam. So this is one section that covers about 1/4 of your CLAT paper, which is roughly 28, 30 या 32 marks का आएगा ये, है ना? तो 30 का एक एवरेज लेकर चले तो 1/4 कवर कर लेगा, राइट? नाउ सोर्सेस बताने से पहले it's very important to understand that CLAT expects you to know each and every current affair with complete background information as well. I think we've discussed that multiple times, right? So let's say, for example, this year we saw Operation Sindoor, one of the very important operations that India executed against Pakistan because we were really fed up of their terrorism. Now, terrorism कोई नई बात नहीं है. पाकिस्तान से इंडिया में terrorism आना भी कोई नई बात नहीं है. इंडिया पाकिस्तान के wars भी कोई नई बात नहीं है. All of these things have happened in the last, let's say, 78, 80 years. So all of these things you must know in detail. You should know the first, second, third Indo-Pak war. You should know the Kargil war. You should know the other operations that India has conducted against Pakistan or Pakistan has conducted against India. The treaties and everything that are associated with that topic, right? तो एक comprehensive coverage करना बहुत ज़्यादा important है. Now, how do we do that? Let's first understand this, okay? First priority that you would give to the subjects or to the concepts or to the topics would be the national topics. If you look at the current affairs that are given in the past 6 years of paper from 2020 till 2025, चाहे वो आसान है, चाहे वो difficult है, most of the questions have been asked from national current affairs और इंटरनेशनल उस तरह की करंट अफेयर्स ज्यादा आते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया इन 2023 हैड होस्टेड द G20 समिट. अब G20 समिट इंपॉर्टेंट है, इट्स एन इंटरनेशनल करंट अफेयर बट इट हैपेंड इन इंडिया, सो इट हैज टू हैव सम नेक्सस विद इंडिया, राइट? इंटरनेशनल टॉपिक्स, जो कोर इंटरनेशनल टॉपिक्स हैं, वो तब आते हैं जब वो बहुत ही ज्यादा न्यूज में है या फिर कुछ ऐसा स्पेशल हो रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल पहली बार कतर में वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, उस पर 7 नंबर का क्वेश्चन आया था. रशिया यूक्रेन वॉर वाज अ वेरी बिग न्यूज दैट ईयर, तो उस पर क्वेश्चन आया था. वैसे ही इस साल के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो कौन से टॉपिक्स हैं that are core international topics and you want to cover them properly, right? Now let's understand the sources. First source for current affairs, for understanding as to what current affairs is very much in news, क्योंकि फिर उसके आने के chances बढ़ जाते हैं, is newspaper reading. I've already told you should read any one of these two newspapers, which is The Hindu and The Indian Express. इन दोनों में से अगर आप एक भी पढ़ते हो properly, regularly, you will always be in touch as to what's important from current affairs point of view as well. ठीक है? Although न्यूज़पेपर में आपको हर जगह एक एग्जैक्टली नहीं मिलेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है उस टॉपिक में से, बट आपको ये आइडिया जरूर अच्छे से लग जाएगा एज टू व्हाट्स गोइंग ऑन इन न्यूज, व्हाट इज ट्रेंडिंग. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? Second very important thing is there are monthly compendiums that you would find at multiple places. We also provide you monthly current affair compendiums absolutely free. You can visit our website or you can download our app, जहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो हर मंथ का करंट अफेयर कंपेंडियम. इट्स अ बल्की कंपेंडियम, इट टेक्स सम टाइम टू कवर बट इट इज वेरी इफेक्टिव इन योर प्रिपरेशन. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नीड टू टेक सर्टेन क्लासेस बिकॉज कई बार हमको डेप्थ समझ नहीं आती, है ना? तो अगर आप कोई भी मेंटर आइडेंटिफाई कर सकते हो, आई एम माई सेल्फ अ करंट अफेयर स्टैटिक जी के मेंटर. उसके अलावा अगर आपको किसी और का टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है वो भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर श्योर कि वो पर्सन भी इसको डीप डाउन अच्छे से कवर करेगा, राइट? I particularly have this particular current affairs and static GK designated batch. इस बैच के डुअल फायदे हैं. इसमें करंट अफेयर स्टैटिक जीके तो कवर होगा ही होगा फॉर द एंटायर 1 ईयर. इसमें आपको वी विल गिव मोर देन 4000 to 4500 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस टू सॉल्व.
तो यहाँ से क्या होगा, अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा। कई सारे ऐसे टॉपिक्स है लेट्स से वो क्लास में नहीं कवर हुए तो वो रिवीजन के थ्रू इन क्वेश्चन सॉल्विंग के थ्रू कवर हो जाएंगे, राइट। तो दैट इज व्हाई दिस बैच इज अ कंप्लीट ब्लेंड दैट कैन कंप्लीट द एंटायरिटी ऑफ योर करंट अफेयर। यू डोंट हैव टू लुक एनीवेयर। ऑब्वियसली कंपेंडियम तो उसके अलावा भी करेंगे, बट उसके अलावा आपको ऐसे नहीं कि 5 सोर्स और इकट्ठे कर रहे हो, उसकी जरूरत नहीं है, राइट। तो दीज पर्टिकुलर क्लासेस वुड सर्टेनली हेल्प यू। अगर आपको पूरी तरह से हमसे पढ़ना है, इफ यू लाइक आवर टीचिंग स्टाइल, यू कैन ऑलवेज जॉइन आवर बैचेस फॉर क्लैट 2026 व्हिच कवर्स A-Lit एज वेल, है ना। बाय द वे दिस करंट अफेयर्स का जो कोर्स है दिस कवर्स A-Lit के करंट अफेयर्स आल्सो, ठीक है। तो ये दोनों ही बैचेस, द करंट अफेयर बैच एज वेल एज द एंटायर फुल बैच जो सारे सब्जेक्ट सारे मॉक टेस्ट वगैरह कवर करेगा, ये A-Lit तक चलेंगे। मतलब जो कई बार क्या होता है A-Lit पहले हो जाता है, कई बार क्लैट पहले हो जाता है, एक हफ्ते का डिफरेंस रहता है। तो जो भी एग्जाम बाद में होगा तब तक ये बैचेस कंटिन्यूड रहेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए 3 सोर्सेज, द न्यूज़पेपर, द करंट अफेयर कंपेंडियम एंड द क्लासेस। क्लासेस में रेगुलर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में 4th सोर्स इज गोइंग टू बी योर मॉक टेस्ट। आप कहीं के भी मॉक टेस्ट कर लो, कहीं से भी कर लो। अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस ना मिले जिसके आपको आंसर नहीं आते हो, पर्टिकुलरली इन द करंट अफेयर सेक्शन, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप किसी ने अगर 2-4 करंट अगर मॉक में सॉल्व किए हैं तो आपको आइडिया लग गया होगा, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, वी विल यूज मॉक टेस्ट ऑल्सो एज अ सोर्स फॉर करंट अफेयर। Let's say there are 5 topics or 4 topics in a particular set, in a particular current affairs section. Let's say आपको 2 आते थे या फिर 3 आते थे, जो बाकी के नहीं आते थे उनके हम फिर प्रॉपर्ली नोट्स बनाएंगे, एंड दैट इज समथिंग वो आपको ठीक से करना पड़ेगा। यू नीड टू मेंटेन अ प्रॉपर नोट्स कॉपी एज वेल, ठीक है। नोट्स कॉपी ये बहुत सिंपल सी चीज है। नोट्स कैसे बनाते हैं, वी राइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वी राइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी चीज में इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर इज अ ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में वो कैसे जेंडर के गैप को मेजर करते हैं, उनके 4-5 इंडिकेटर्स हैं। तो वो सारी चीजें, वो सब फैक्चुअल चीजें लिखनी है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, कब शुरू हुआ था, यू नो, इस बार कौन सा उसका एडिशन है, ऑल ऑफ दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया हमारा 4th सोर्स। We will only refer to one more source which is GK Today, जो रोज का 5 मिनट का काम है। It helps majorly with A-Lit, बहुत ज्यादा हेल्प करता है, and it also helps you with CLAT because a lot of times, again मैं रेफर करूंगा लास्ट 6 years के जो पेपर है फ्रॉम 2020 till 2025, बहुत बार क्वेश्चन स्ट्रेट अवे जीके टुडे से आए हुए हैं क्लैट में भी। हम ये रियलाइज नहीं करते बिकॉज हमको काफी सारे क्वेश्चन एक ही टॉपिक के दे देते, तो हमको हमें पता नहीं चल पाता कई बार। तो जीके टुडे शुड बी अ डेली 5 मिनट रीड। हम लोग बहुत अपने फोन्स को आजकल स्क्रॉल करते हैं, तो एक स्क्रॉलिंग की हैबिट अच्छी भी बना सकते हैं जिससे आप जीके वहां से भी कवर कर सकते हो। रोज के 5 एमसीक्यूज, दैट्स इट, ठीक है। तो ये 5 सोर्सेज फॉलो करो। इसमें से कुछ रेगुलर सोर्सेज है विच इज क्लासेस एंड न्यूज़पेपर एज वेल एज जीके टुडे, ठीक है। एक मंथली सोर्स है विच इज कंपेंडियम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है करना, और एक वीकली सोर्स है विच इज योर मॉक टेस्ट। तो ऐसे अलग अलग तरह के सोर्सेज है। हर रोज यू हैव टू गिव हाफ एन आवर टू 1 hour टू करंट अफेयर्स। ये रोज 1 घंटा निकाल के चलो आप, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। अगर एंड में आप कॉन्फिडेंट हो ना, क्योंकि जब हम एग्जाम में करंट अफेयर करते हैं ना, हमें उसी पॉइंट में पता चल जाता है कि हमें करंट अफेयर आते हैं नहीं आते हैं, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट तो सब्जेक्टिव हैं, बाकी सारे क्वेश्चन सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, करंट अफेयर्स का वहीं पता चल जाता है। तो इसीलिए अगर वो अच्छा जाता है तो हमारा एग्जाम में मोराल बहुत हाई रहता है, एंड वी आर एबल टू डू अदर सेक्शंस आल्सो क्वाइट प्रॉपर्ली। और टाइम बहुत कम लगता है सेक्शन को करने में। 30 क्वेश्चंस वुड एट मैक्स टेक 12 to 15 मिनट्स। तो जल्दी से जब पेपर खत्म हो जाता है तो हमारे पास बाकी सब्जेक्ट्स को अच्छे से करने के लिए टाइम बहुत बच जाता है। दैट इज ऑल्सो क्वाइट हेल्पफुल, राइट। तो ये कुछ सोर्सेज हैं। प्रायोरिटी कैसे कॉन्सेप्ट्स को देनी है, क्या करना है, वो मैंने आपको बता दिया कि जो मेरा कोर्स है करंट अफेयर्स का, या फिर जो हमारा एक फुल बैच है, उसमें पूरी तरह से मैं कवर करूंगा। दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई विल गिव यू ईच एंड एवरीथिंग that you require to cover this particular section in complete detail, and we are going to get more than 25 all of us if we do it regularly and we revise it as well, ठीक है। backlogs and everything will be covered the part of this course as well. आप कंपेंडियम से भी कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो दैट वुड बी एडिक्वेट, एंड दैट वुड बी कह सकते हो कि ज्यादा एक इफेक्टिव तरह से आप तैयारी कर पाओगे, राइट। तो ये कुछ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है। अगर आप रोज 1 घंटा निकाल सकते हो, अगर मतलब निकालना ही पड़ेगा वैसे तो, है ना, इट्स नॉट एन ऑप्शन, तो आपका बैकलॉग भी कवर हो जाएगा और आप नए टॉपिक्स को भी साथ साथ कर पाओगे। विद इन 2.5 मंथ्स आप बराबर कर लोगे, मतलब पुराना भी कर लोगे और नए वाले को भी आप कवर कर पाओगे। हमको कई बार ये लगता है कि हमारा बैकलॉग 6 महीने का रहेगा तो हमें वो कवर करने में 6 महीने लगेंगे, ऐसे नहीं होता, ठीक है। आप 6 महीने का बैकलॉग को 2.5 महीने में आराम से कवर कर सकते हो, अलॉन्ग विद द न्यू टॉपिक्स प्रोवाइडेड यू आर रेगुलर, राइट। So that's it about this particular session. I hope it was useful. अगर आपको कोई भी और हेल्प चाहिए या फिर आपको कोई भी और डाउट है विद रिस्पेक्ट टू हाउ टू कवर करंट अफेयर,
you can always mention that in the comment box. I'll be happy to take it from there and answer it for you. Don't confuse yourself with multiple sources. ये जो मैंने आपको 5 सोर्सेज बताए, कुछ रेगुलर है, कुछ मंथली है, कुछ वीकली है, सिर्फ इन पर स्टक रहो, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है. You will only get confused. But yes, अगर आपको स्टैटिक जीके करना है, स्टैटिक जीके के लिए यू कैन ऑलवेज फाइंड दिस बुक कॉल्ड लूसेंट जीके, वेरी इफेक्टिव बुक. मैं क्लास में तो कवर करूंगा ही करूंगा. जिन जिन लोगों को लगता है कि नहीं क्लास नहीं हम अपने आप ही करेंगे, आप लूसेंट जीके से भी कर सकते हो. थोड़ी सी मोटी बुक है, कई बार करने में थोड़ा सा आलस भी आता है, पर अगर आपको ऐसा लगता है आप डेफिनेटली क्लास में आओ. सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं क्लास में भी कवर करने वाला हूँ. ऑल द बेस्ट गाइस. I'll see you in my classes. Keep working hard, keep smiling. This is definitely your year. अगर आपको अंदर से ये बिलीव होगा तो आप और भी अच्छा कर पाओगे. All the best.